Hello everyone. I hope you all are good and you all are practicing questions, learning things. That is so great. For now, let us focus on this question. This one is from capacitor, as you can see. So first, let us read the question carefully. Let us mark things carefully, and after that, let us understand the system carefully. And after that, let us come to the conclusion that whatever is happening around the system. Okay. So one by one, we will get to each one of this. Okay. Let's start with first thing. Two square metal plates have side of length L and thickness T. So it has a side of length L. This is length, this is breadth. It is L and thickness. This one is given as how much? T. Okay. Chalo. Now what else is given? They are arranged parallel to each other with their inner faces at a separation of 5 by 2t. Done it? So there are two plates first indicated in the question. This is top plate, this is bottom plate. Both are geometrically same, right? L and L. And the separation between their inner faces, that is between this face and between this face, is how much? 5t by 2. And t is what? T is this width of the plate, each individual plate. Okay. चलो अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है. One of the plate is given a charge minus q, this is the bottom one, and another one, that is top one, is given a charge of plus q as indicated in the diagram, right? There is a third rectangular metal plate and it has a side of L and breadth x, right? Having thickness t by 2. This plate has a different thickness, it has a thickness of t by 2, and this is inserted between the plates as shown, right? डन है. द थर्ड प्लेट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द टू प्लेट. सो थर्ड प्लेट फर्स्ट प्लेट से जितने दूरी पर है, एट द सेम डिस्टेंस इट इज फ्रॉम द बॉटम प्लेट. डन है. लेट्स कॉल इट डी. लेट्स कॉल इट डी. ठीक है. सो दिस इज समथिंग लाइक दैट. Neglect edge effects. Edge effects कहने का मतलब we need to take electric field confined between these two plates. We don't have to draw it like it's coming out of the plates. ठीक है. So what else we need to what exactly we need to calculate? हमें चार चीजें निकालनी है. Find the charge density on lower plate at point 1 and 2. So फर्स्ट क्वेश्चन से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो बॉटम प्लेट है ना, उसके हर जगह चार्ज डेंसिटी सेम नहीं रहेगा. सेम हो भी सकता है, लेट्स फॉर नाउ नॉट गो इनटू दैट डिस्टिंक्शन की सेम नहीं होगा, बट स्टिल हमसे ये पूछा जा रहा है कि 1 और 2 पे चार्ज डेंसिटी क्या है. सो कुछ ऐसा लग रहा है कि मे बी इट इज डिफरेंट, राइट? Then we are asked potential difference between upper and middle plate. Then we are asked electric field status. Then we are asked capacitance of the system across outer plates. ठीक है. सो देखो इस क्वेश्चन को हम कर कैसे सकते हैं. आप एक काम करो, जब भी हमें कैपेसिटर का क्वेश्चन दिया होता है एंड व्हेन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन कैपेसिटर, वी ऑलवेज ट्राई टू सी इफ दे आर इन सीरीज और पैरेलल. तो आप एक काम करो, जो टॉप प्लेट है उसको आप पोटेंशियल V1 दे दो, एंड बॉटम प्लेट को आप पोटेंशियल V2 दे दो, और मिडिल प्लेट को सपोज कर लो इसको पोटेंशियल मैंने दिया V3. नाउ टेक 3 पॉइंट्स. ठीक है. because in terms of potential we have 3 points, V1, V2, and then there is V3. ठीक है. Now start seeing how many capacitors are there. ठीक है. स्टार्ट सीइंग फ्रॉम V1 एंड V3. सो V1 और V3 को अगर आप देखो ध्यान से, तो फर्स्ट जो टॉप प्लेट है ना, उसका ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, एंड बॉटम प्लेट, बोथ विल बी ज्योमेट्रिकली सेम इन दैट केस, राइट? अगर हमने टॉप का इतना ही पोर्शन लिया तो, right? So this portion and this portion will form one capacitor of potential difference V1 minus V3. So V1 minus V3 के बीच में मैंने एक कैपेसिटर डाला, और उसका कैपेसिटेंस आप क्या लिखोगे? लेट्स कॉल इट C1. सो C1 को आप क्या लिखने वाले हो? C1 को लिखोगे एप्सिलॉन नॉट. एरिया क्या होगा बताओ? दिस इज दिस इज x, so this is x and this is L. So area is Lx एप्सिलॉन नॉट A by D. सो सेपरेशन हमने क्या अज्यूम किया था? यहां से ये लिया था हमने D. सो दिस इज D, राइट? अब आप ध्यान से देखो C2 क्या होगा. C2 है क्या? V2 एंड V3 के बीच में भी एक और प्लेट है, एंड सेम एज दिस C1 केस, राइट? क्योंकि दिस फॉर दिस कैपेसिटर with separation D, again one plate will be this middle one and another will be the bottom one. Done it? So same geometrically C2 will be same as C1. So C1 C2 is equal to C1 is equal to epsilon naught Lx by D. Then there is one more capacitor and at that we need to look more carefully. जैसे आप देखो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, फर्स्ट टॉप प्लेट का, एंड बॉटम प्लेट का अगेन सेम ऐसा रीजन,
है ना. So these two will form another capacitor. Let's call it C3 and that will be with potential V1 and V2. So this is your C3 और C3 का वैल्यू आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एप्सिलॉन नॉट एरिया. एरिया will be how much? So area of this thing, this whole was L, this was X, so this is L minus X. So area will be L into L minus X divided by separation, that is 5T by 2. ठीक है. नाउ वी नीड टू चेक फॉर कि डी का वैल्यू टी के टर्म में क्या होगा. तो चलो यहां से देखते हैं हम. व्हाट आई टुक इज, ये वाला हमने डी लिया और ये वाला हमने डी लिया. सो डी के टर्म में सेपरेशन बिटवीन इनर फेसेस ऑफ टॉप एंड बॉटम प्लेट इज हाउ मच, 2D. एंड दिस 2D इज इक्वल टू हाउ मच, 5T by 2. है ना. सो दिस इज 5T by 2. सो डी विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट शुड बी इक्वल टू 5T. ओके ओके, नहीं नहीं, एक चीज हमने मिस करा. दिस इज डी, दिस इज डी, मिडिल में भी टी बाई टू है, सो यहाँ पे टी बाई टू रखो. ठीक है. सो टी बाई टू प्लस डी इज इक्वल टू 5T by 2. सो 2D हमारा कितना होने वाला है, 5T माइनस टी, दैट इज 4T by 2. सो दिस इज 2, डी विल बी इक्वल टू हाउ मच, टी. ठीक है. सो C1 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे C1 को लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट LX by T. So in terms of T, LX epsilon naught, we have calculated C1, C2 and C3. राइट. अगर हमें कैपेसिटेंस निकालना है, जैसे फाइनल क्वेश्चन, फाइनल देखो, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम अक्रॉस टू आउटर प्लेट्स. सो टू आउटर प्लेट्स के बीच में अगर आपको निकालना है, यू विल बी अप्लाइंग अ बैटरी लाइक दिस. डन है. So I mean across this end, across I mean this is the battery basically, right? So you have to calculate C equivalent across these two outer points, right? So what will be the सॉरी सी इक्विवेलेंट निकालना है, राइट. सो क्या होगा बताओ, ये C1 एंड C2, दिस टू आर इन पैरेलल, सॉरी सीरीज. डन है. एंड C3 विल बी इन पैरेलल विथ इट. सो C1 C2 को सीरीज में ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, वी नो दैट C1 एंड C2 आर मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल, दे आर इन सीरीज. सो C1 C2 का इक्विवेलेंट क्या होगा, चलो एक बॉटम ब्रांच का इक्विवेलेंट निकाल रहे. सो दैट विल बी इक्वल टू C by 2, where C is equal to nothing but C1, right? क्योंकि पैरेलल में हम जोड़ते हैं ना, when capacitors are in series we add them like in parallel. डन है. so C by 2 and that will be equal to how much, epsilon naught, एक कितना था तुम्हारा, LX divided by 2T, है ना. सेम था ना, epsilon naught LX by 2T. now what will be the C3? C3 वैल्यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, दिस इज दिस मच. सो C इक्विवेलेंट तुम्हारा क्या होने वाला है, ओवरऑल दिस टू आर इन पैरेलल, राइट. दिस C इक्विवेलेंट 1 इज इन पैरेलल विथ C3, राइट. सो 1, so C equivalent of the whole circuit you will be writing as C3 plus epsilon naught LX by 2T. सो कैलकुलेशन को आप ध्यान से देखना, वहां पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए. एप्सिलॉन नॉट L माइनस एक्स. So here it is epsilon naught L minus x divided by 5T2 plus epsilon naught LX by 2T. So एक काम करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 से डिवाइड कर दो एंड सेम डू हियर 2. So मैंने डिनोमिनेटर सेम किया. नाउ what things we can get here, we will be getting 10T and चलो जो जो कॉमन है उसको बाहर लिख लेते हैं. ठीक है. एक काम करते हैं, यहाँ पे हमें कम स्पेस लग रहा है. सो व्हाट आई विल बी राइटिंग इज, यहाँ पे इसको ऐड करके मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. ठीक है. सो 10T आप लिखो एंड देन यू विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो. एप्सिलॉन नॉट एल एक्स को आप क्या करो, कॉमन ले लो, एप्सिलॉन नॉट एल एक्स. वी आर लेफ्ट विथ हियर L, राइट. एंड व्हाट एल्स वी आर लेफ्ट विथ 2L, right? Plus how much, that is your 5L I guess. Okay. 2 एप्सिलॉन नॉट L को हमने कॉमन लिया. ओके ओके ओके. देखो 2 और L सेम सेम दिख रहा है, सो मैं कंफ्यूज हो गई. एनीवे लेट्स राइट इट नाउ प्रॉपरली. सो यहाँ पे आप ध्यान से लिखो इसको. दिस इज 2 to 4 हो जाएगा. L को हमने कॉमन ले लिया है. डन है. लेकिन x को मैंने कॉमन कैसे ले लिया, x तो नहीं होगा ना. सो एप्सिलॉन नॉट L को आप कॉमन ले लो एंड देन यू विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, यू विल बी लेफ्ट विथ 4 L minus x, right?
एंड प्लस हाउ मच हियर एप्सिलॉन नॉट एल को हमने कॉमन लिया है सो 5x, right? So what will be the answer? Epsilon naught L by 10t and 4L minus 4x plus 5x, that will give you how much? 4L plus x. ठीक है, so this will be your C equivalent. Basically you just need to look check for कि सब कुछ हमने सही लिखा है या नहीं, एक बार चेक कर लेना. but this is the method. okay, so this is how we can calculate it. अब हमें देखो क्या क्या निकालना है, और we need to calculate charge distribution at point 1 and 2. so let's get it there. suppose कर लो this plate was given total charge how much? plus q. so let's say on this capacitor जो हमने यहाँ पे लिया था ये वाला, and this one, done hai. Let's say for this thing here charge is q, so this combination will be left with how much charge? Capital Q minus q. ठीक है, so if I now redraw the circuit, हमारे पास ये था and then we were having this, right? so this was your C1, this was your C2. C1 C2 was which one? This was C1, this was C2. so this has a charge of q. Let's talk about this potential difference जिसको हमने क्या माना था? V1 and V2 sort of, right? so इसके पास तुम्हारा चार्ज कितना जाएगा? प्लस क्यू ले लो, तो इस पे कितना होगा? माइनस क्यू. और यहाँ पे कर दो प्लस क्यू, और इसके पास भी क्या होगा? माइनस क्यू. सो सॉर्ट ऑफ देखो ये वाला प्लेट तो तुम्हारा न्यूट्रल था, राइट? सो इसके टॉप पे प्लस क्यू गया, तो बॉटम पे क्या गया? माइनस क्यू गया. एंड दिस बॉटम प्लेट will also have here minus q charge. so at point 1 it will be left with how much? It will be left with minus of q uh, minus q. ठीक है, दिस मच इट विल बी लेफ्ट विथ. सो इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, और यहाँ पे चार्ज कितना होगा? q माइनस क्यू, एंड हियर चार्ज इज माइनस q माइनस क्यू. डन है. सो पोटेंशियल डिफरेंस अगर v1 माइनस v2 को अगर मैं v लेकर चलूं, ठीक है, सो इसको अगर मैं v मान लूं, तो यू कैन से दैट ऑन दिस होल कैपेसिटर, आई मीन C1 C2 के इक्विवेलेंट पे कितना चार्ज होगा? C equivalent 1 into V, right? And that is equal to how much? Small q. So from here we can calculate small q. Let's do the calculation. So C equivalent 1 हमारा कितना आया था? इसलिए मैंने fourth पहले निकाला. So that was epsilon naught Lx by 2t, right? So that is epsilon naught Lx by 2t into V will be equal to how much? That will be equal to q. है ना? C भी इक्वल टू Q. अब देखो हमें Q निकालना है, V भी एक वेरिएबल है. सो वी नीड टू लेट्स राइट चार्ज ऑन दिस वन ऑल्सो. सो ये C3 है. C3 का वैल्यू कितना था? देखो how much was that? That was epsilon naught L minus x. So epsilon naught L minus x 5t by 2. So this is this into V. क्योंकि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V होगा. दिस टू कॉम्बिनेशंस आर इन पैरेलल, राइट? सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? Q माइनस Q. अब एक काम करो, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. In equation 2 put the value of V from equation 1. So that will be equal to how much? 2tq by epsilon naught Lx. So let's put the value 2 epsilon naught L minus x by 5t into V था ना? I hope I have written everything correctly. Yes. V को क्या लिखोगे? 2tq epsilon naught Lx. So this is 2tq by epsilon naught Lx, and this will be equal to how much? Q minus Q. So this is equal to Q minus Q. Now we need to solve it. T को आप cancel कर दो यहाँ से. Epsilon naught L cancel हो जाएगा. X is we are left with. So this is equal to 4L minus X by 5X. Done है. Into Q equal to Q minus Q. ठीक है. So again we need to take this Q this side. So 4L minus X by 5X plus 1 into Q is equal to Q, right? इसको आप ऐड करके देख लो क्या आ रहा है. 4L minus 4X plus 5X. So we will be left with how much? Plus X divided by 5X. राइट, एंड दिस इनटू Q इज इक्वल टू कैपिटल Q. सो स्मॉल q क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा 5qx डिवाइडेड बाई 4L प्लस x.
So we have got small q का value. Now we need to look for कि point 1 पे तुम्हारा कितना, point 2 पे कितना होगा q minus q. So point 2 पे charge कितना होने वाला है, minus 5qx divided by 4l plus x. ठीक है. So this is the value we are getting. At point 1 we will be getting how much, minus of q minus q. So calculate that, minus of q माइनस q को क्या लिखोगे, 5qx डिवाइडेड बाई 4l प्लस x, राइट. सो यहां से अगर आप कैलकुलेट करते हो, यू विल बी लेफ्ट विथ हाउ मच. सो दिस इज, q को कॉमन ले लो एंड देन यू विल बी गेटिंग 4l प्लस x माइनस 5x q divided by 4l plus x. So this will become how much? This will become 4l minus x divided by 4l plus x into how much, into q. ठीक है. So this is the answer we are going to get for point 1. और हमें क्या निकालना है, देखो, find potential difference between upper plate and the middle plate. ठीक है. सो अपर प्लेट और मिडिल प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यू नो द वैल्यू ऑफ चार्ज हियर, राइट. स्मॉल क्यू यू नो. सो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आपको पता है कि आप जानते हो इन इन कैपेसिटर्स के लिए, ये वाला जो कैपेसिटर था इसके लिए चार्ज क्या है, क्यू है. ठीक है. एंड व्हाट इज द सी इक्विवेलेंट, दैट आल्सो वी नो. सो C1 का वैल्यू वी नो, दैट वाज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट L x divided by d, that was equal to t, right. So C1 is this one, q value you know, and q equal to क्या होगा तुम्हारा, C1v. So v will be equal to q by C1. So that you simply need to put the value and get the answer. ठीक है. और नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, देख लो. सी क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू आउटर प्लेट्स इन स्पेस वेयर द थर्ड प्लेट इज नॉट प्रेजेंट. ठीक है. सो हमें देखो कहाँ पे पूछ रहा है, बेसिकली वी आर गेटिंग आस्क्ड कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. अगेन v का वैल्यू आप निकाल लो. सॉरी, दिस v इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन. ठीक है. यहाँ पे जो हमने लिया था, कहाँ पे, यहाँ पे. ठीक है. ये जो v लिखा है ना हमने, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को लिखा है. अब यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्मूला में लिख दिया. इसको आप एक काम कर लो, इस डिफरेंस को आप v1 मान लो, तो यहाँ पे v1 लिख लो. ठीक है. सो v1 यू कैन कैलकुलेट. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, v का वैल्यू हमें यहाँ से मिल सकता है, इस v का वैल्यू हम निकाल सकते हैं बिकॉज वी नो q, राइट. सो वी कैन कैलकुलेट v, एंड इफ वी नो v वी कैन कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा कितना होने वाला है, v इक्वल टू क्या होगा, ed. सो e इक्वल टू व्हाट, b बाई d, राइट. एंड d मीनिंग सेपरेशन, सॉरी सेपरेशन, सेपरेशन क्या है तुम्हारा, 5t/2. So this will be this. I hope you will be able to calculate it. I know I don't need to just go time and again back and come forth and then write things. क्योंकि concept is clear. I have explained कि ये system कैसा दिख रहा है. I have explained how to do the charge distribution and how these capacitors, this system is a combination of 3 capacitor, 2 in series and that in parallel with the third one. ठीक है. So I hope it is clear, but if you're having any doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you. Bye bye. Take care.